میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا، سب اس بات کا اقرار کریں میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا، میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا، دے اپنی حضوری، دے اپنا مسا، دعا دے اپنی حضوری، دے اپنی مجھے اپنی راہوں پہ چلنا سکھا دے، مجھے اپنی راہوں پہ چلنا سکھا دے، مسیحا کے مانند مجھے تو بنا دے، مسیحا کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا، دے اپنی حضوری، دے اپنی اپنا مسا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا، ہمارے لیے آج کا انجیلی بیان بنسبتی رسول کی بات پر لکھا گیا ہے، اس کا 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے باب کے آخر مقدس متی رسول کی بات پر لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے قرآن کے زندگی بخش قرآن میں لکھا ہے۔ اس وقت یسوع نے کہا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند،
میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائی اور بچوں پر ظاہر کی۔ اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور اس نے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اے میرے اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروغ ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ دعا کریں۔ اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو مجھے برکت دیتا ہے تاکہ میں تیرے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنوں۔ اس وقت بھی خداوند دعا کو کہ جو وقت خداوند نے مقرر کیا تاکہ میں تیرے کلام کی منادی کرتے ہوئے برکت کو تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں، تو میری سہایتا کرتا ہے۔ لفظوں کی وہ ترتیب جو تیرے جلال کا اثر قائم کرتی ہے، وہ میرے ذریعے تیرے لوگوں تک پہنچے، اور ہر ایک دل تیرے پاک حضور پہ مسح کیا جائے، ہر ایک کام تیری پاک حضوری میں مسح کیا جائے، تاکہ خداوند جو کلام سنا جاتا ہے وہ ایمان پیدا کرے، اور ایمان تیرے بیٹے پر مضبوط ہو کر اپنی زندگی کا باعث کرے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ پچھلے کئی اتواروں سے ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں، یہاں پر متی رسول کی انجیل ہے اور خدا یسوع مسیح کی تعلیمات ہیں، اور تعلیمات جو ہیں وہ شاگردیت کے حوالے سے اور لیڈرشپ کے حوالے سے ہیں، اور میں اکثر اس بات کو سیکھتا ہوں اور آپ تک بھی پہنچاتا ہوں کہ خدا نے بنی ہوئی انسان کو اس دنیا کے لیے ایک لیڈر مقرر کیا تاکہ وہ دنیا کی قیادت کر سکے اور دنیا کو اچھے اور بہتر انداز سے آگے لے کر جا سکے۔ میں نے اس بات کو بھی کئی دفعہ پہنچانے کی کوشش کی کہ قیادت جو ہے وہ کسی شہرت کا نام نہیں ہے، قیادت جو ہے وہ انچارجشپ لینے کا بھی نام نہیں ہے، بلکہ قیادت لوگوں کی حفاظت کرنے کا نام ہے، قیادت لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کا نام ہے، قیادت لوگوں کی داد رسی کرنے کا نام ہے، قیادت لوگوں کو راحت کا سامان فراہم کرنے کا نام ہے۔ قیادت اس بات کی نشاندہی نہیں کرتی کہ آپ کتنے زیادہ معتبر ہو گئے ہیں، آپ کتنے زیادہ شہرت کے حامل ہو گئے ہیں، آپ کے پاس دنیا جہان کی نعمتیں اور برکتیں کس تعداد میں آ گئی ہیں، بلکہ قیادت کے خداوند یسوع مسیح کے کردار کے اندر جو پیغام ہے اس کو اپنانے کا نام ہے۔ اور آج تھوڑا سا ہم اسی پر اپنی آج کی اس عبادت میں غور و غوض کرتے ہوئے برکت پائیں گے تاکہ وہ سیکھ سکیں کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ متی کی انجیل کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے اس سلسلے میں ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ جو قرآن یسوع مسیح نے ایک دعوت دی ہے، اور وہ ایک ایسی دعوت ہے جو سب کے لیے ہے، وہ کسی رشتہ دار کے لیے نہیں ہے، وہ دعوت جو ہے وہ عمرہ کے لیے نہیں ہے، امیر لوگوں کے لیے نہیں ہے، غریب لوگوں کے لیے نہیں ہے، داناؤں کے لیے نہیں ہے، حکیموں کے لیے نہیں ہے، جاہلوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت جو ہے وہ سب کے لیے، اس میں سب شامل ہیں۔ اور اگر میں تھوڑا سا یہاں پر اس کو روک کر یرمیہ کی کتاب میں آپ کو لے کر جاؤں، جہاں پر یرمیہ جو ہے وہ
नबी के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इस बात को सिर्फ इतना अपने ज़हन में रख लें कि यिर्मयाह वो नबी है जो अपनी कौम के लिए आंसू बहाता रहता है। यिर्मयाह वो नबी है जो अपनी कौम के लिए खुदा की हज़ूरी में रोता है, चिल्लाता है। अगर आप यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं तो वो अपने दुख का इजहार किस तरह से करता है कि ये खुदा की दावत को क्यों नहीं सुनते। खुदावंद जो राहत देना चाहता है, खुदावंद जो आराम देना चाहता है, खुदावंद जो अबदी जिंदगी देना चाहता है, खुदावंद जो इलाही तख्तो ताज देना चाहता है, ये क्यों नहीं सुनते। वो फरमाता है कि दर हकीकत मेरे लोग अहमक हैं, बदी करने में बड़े होशियार हैं, लेकिन नेकोकारी की समझ नहीं रखते। एक जगह पर और फरमाते हैं कि हवा के परिंदे जो है लक का जिक्र करते हुए कि वो तो अपने वक्त को पहचानते हैं कि उन्होंने अपना वक्त सर्दियों में कहाँ गुजारना है और गर्मियों में कहाँ गुजारना है, वो तो जानते हैं, लेकिन मेरे लोग नहीं जानते। और जब खुदा की इन बातों को हम यिर्मयाह के वसीले से सुनते हैं तो बड़ा दुख लगता है कि अंजाम क्या होता है। जब हम मसीह बादशाह पर गौर करते हैं तो उसने खुदा की दावत को नहीं सुना, खुदा के प्यार को अकीर जाना, और लिखा है कि उसने नकेल डाल कर असीरी में ले जाया गया, बेड़ियों में बांध कर असीरी में ले जाया गया। वो जिनके साथ वादे, वो जिनके साथ खुदावंद के बाप दादा से वादे किए हैं मर्दों, वो जंग में रुसवाई का जो है वो सिंबल बनते चले जा रहे हैं। वो भी जब जब बनी इंसान खास तौर पर बनी इसराइल ने तौबा की तरफ अपने आप को राग़िब किया, अपने आप को तैयार किया, तो खुदावंद की दुआओं का जवाब दिया। आज जब हम इन बातों पर अपना ध्यान लगाते हैं तो दो बातें इब्तिदाइया मैं आपके साथ करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि पादरी होना आसान है और नबी होना बड़ा मुश्किल है। बात समझ में आई है मैंने क्या कहा? पादरी बनना, नबी बनना मुश्किल है, क्योंकि पादरी अपने सिस्टम में चलता है और नबी जो है वो खुदा के सिस्टम में चलता है। मैं सारे पादरियों के बारे में नहीं कह रहा, मैं उन्हीं पादरियों को शामिल हूँ जो सिस्टम के ताबे अपने आप को करके खुदा की हज़ूरी में उस तरह से नहीं चल पाते जिस तरह से चलने की जरूरत है। सिस्टम की ताबेदारी कह कर हम खुदा से बागी होते चले जाते हैं, जबकि नबी जो है वो खुदा के सिस्टम की बात करते हैं और जंगलों वीरानों बयाबानों में मुश्किल और मुसीबत ज़दा जिंदगी बसर। बाइबल में बताती है कि अंबिया इकराम कभी भी आसान जिंदगी बसर नहीं कर पाए, चाहे वो यिर्मयाह हो, चाहे वो यूसाया हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो हिजकिय्याह हो, चाहे वो दीगर अंबिया, चाहे अंबिया अकबर हो, अंबिया अस्तर हो। और ये सिलसिला जो है वो फिर रसूलों तक चलता आया। जो रसूल सिस्टम में चले गए वो पुरआज़माइश जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी, लेकिन जिन रसूलों ने अपने आप को खुदा के ताबे किया उन्होंने शहादतों की तरफ अपना ध्यान दिया, क्योंकि उन्होंने खुदा की उस दावत को रद्द नहीं किया जो दावत खुदा उन्हें देता है। आज जब हम मत्ती रसूल की इंजील के इस मतन को जो आपके सामने पढ़ा गया गौर करें तो जो पहली 25वीं आयत से हमने पढ़ना शुरू किया तो वहां पर खुदा ने इन बातों की तरफ राग़िब करते हुए कुछ सिखाते हैं।
کہ ہم خدا کے مکاشفے کی جب بات کرتے ہیں تو کیا مکاشفہ ہے خدا کا؟ اگر اس کا سیاق و سباق جاننے کی کوشش کریں تو پھر وہی ہوگا کہ گویا میں تم بھیڑوں کو بھیڑیوں کے پاس بھیجتا ہوں. یعنی وہ لوگ جو شریعت کا بوجھ جو ہے وہ عام لوگوں پر ڈال دیتے ہیں. میں ولیم بارکلے کو پڑھ رہا تھا تو ولیم بارکلے اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ بہت ساری ترجیحات اس زمانے میں ایسی تھی کہ آدمی جو ہے وہ بوجھ شریعت کے بوجھ کی طرح دبا ہوا تھا. ہر بات پر وہ ایک غلامانہ اور اسیرانہ زندگی کی طرف چلا جا رہا ہے جس کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں. کن کے بارے میں کرتے ہیں؟ وہ جو سسٹم کے پابند ہیں ان سے کہتے ہیں کہ تم سوسائٹی گری کیا ہو. لیکن ایک بات وہ ضرور کہتے ہیں کہ جو یہ کرتے ہیں وہ مت کرو اور جو کہتے ہیں وہ ضرور کرو. کیونکہ کہتے برا نہیں کرتے برا ہے. خود کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتے. جو شریعت کا بوجھ جو شریعت کی باتیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان پر وہ خود عمل نہیں کرتے. وہ اپنی سیٹیں بچانے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں. اس لیے وہ غریب غربا کا خیال کیا رکھے گی؟ کلام کہتا ہے دوسروں پر تو ہاتھیوں جیسا بوجھ ڈالا ہوگا. دوسروں کو سونپ وہ دینے کی بھی تعلیم دے دیتے کہ اس پر بھی تم نے جو ہے وہ دینے کی دینی ہے, اس کا بھی تم نے حساب دینا ہے, اس پر بھی ہدیہ دینا ہے, اور خود کے بارے میں معلوم ہی نہیں. تو یہ وہ مکاشفہ جو آج خداوند پھر مجھ پر اور آپ پر بیان کرتا ہے کہ خدا باپ نے ان ساری باتوں کو کن پر ظاہر کر دیا؟ ان پر جن کو لوگ ظاہر سمجھتے ہیں. ان پر ظاہر کی جن کو لوگ اپنے جیسا نہیں سمجھتے, جن کو لوگ اپنے اسٹیٹس سے نیچا سمجھتے, ان پر ظاہر کی. کیونکہ باپ کو یہ کیا آیا تھا؟ پسند آیا تھا کہ وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس بات کو عام کر دے کہ خدا اپنے پیار اور اپنے جلال کو کسی سے بھی پوشیدہ نہیں رکھتا. اسے پڑھے لکھوں کا خدا نہیں, وہ کل کائنات کا خدا ہے. اس کی محبت کا معیار صرف اعلیٰ عمرہ کے ساتھ نہیں ہے. اس کی محبت کا معیار کیا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی, دنیا سے. اس کی ایک خاص شخص قبیلے قوم کی بات نہیں ہے, اور اس نے اس بات کا اظہار کر دیا اور اس رشتے کو بھی ظاہر کر دیا جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہے. کہ باپ اور بیٹے کے سوا کوئی نہیں جانتا, لیکن اس کے باوجود یسوع مسیح نے اس بات کو رکھا تاکہ لوگ اس شریعت کے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کر سکیں جو ایک خاص طبقے کی عیاشی کے لیے, ایک خاص طبقے کی عیاشی کے لیے اس طبقے کو ریجیکٹ کر سکے, رد کر سکے. آج ہماری زندگیوں میں یہ جو خدا کا پیغام ہے, خدا کی جو باتیں ہیں, خدا کا جو اثر ہے, وہ کتنا میں اور آپ قبول کرتے ہیں. یہ جو دعوت یرمیہ میں دیتا ہے, یہ جو دعوت متی کی انجیل میں ملتی ہے, یہ جو دعوت کا اجر جو ہے وہ رومیوں کے خط پولس رسولوں میں دیتا ہے کہ اب جتنے مسیح میں آ گئے ہیں اب ان پر شریعت کا کوئی بھی اختیار وہ آسان. کلام مقدس میں خدا نے اپنے مکاشفے کو لوگوں تک پہنچا دیا. کہ میں نے
किसी लेवल के लोगों के लिए ये है, नीचे वाले लोगों के लिए खुदा का कलाम नहीं। तो मैंने खुद नीचे आकर, यीशु मसीह ने कहा मैं खुद नीचे आ गया ताकि नीचे वाले लोगों को बता सकूं कि खुदा तुमसे कितना प्यार करता है और तुम्हारे बोझ को क्या करना चाहता है, उठाना। क्योंकि वो मेरा बोझ उठाने वाला है। ये गीत सुना हम लोगों ने? वो मेरा बोझ उठाने वाला है, जो इकरार करते हैं उन पर ये मुकाशफा जो है वो आया हो जाता है। अगर हम इसी इंजील में जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए इस बात को पढ़े, जहाँ पर लिखा है 28वीं आयत में, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों से मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूँ। कितनी जबरदस्त दावत है आराम के लिए। आराम किसे नहीं चाहिए? सबको आराम चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको आराम चाहिए, सबको आराम मिलना चाहिए। ये खुदा की तरफ से भी है। इसीलिए ये आलमगीर दावत दे रखी है मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने कि मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हो। लेकिन मेहनत बड़ी करते हो और बोझ भी तुम्हीं पर लगा हुआ है। वो जो मेहनत करता है बोझ भी उसी पर क्या कर दिया जाता है? बोलिए, जो मेहनत करता है बोझ भी उसी पर लाद दिया जाता है। जो बेचारा सीधा की होता है उसे ठोक दिया जाता है, जो टेढ़ा होता है उसे, ऐसा है? ऐसा ही है कि नहीं? ये तो वैसे बड़ी बातें सोशल मीडिया पे लोग चलाते रहते हैं, तो ऐसे मुझे ये बात याद आ गई कि हम जो मेहनत करते हैं, जो बोझ उठाते हैं, उन्हीं को जो है वो रगीदा जाता है, उन्हीं को है जो दुख दिया जाता है। लेकिन जो काम नहीं करते, जो बादशाह के हजूर रहकर सिर्फ प्याला पिलाते रहते हैं, वो तो अपनी जिंदगी को खुशहालियों में गुजारते हैं। लेकिन जो लोग इस बात से नफरत करते हैं, मैंने एक बात लिखी थी कि सदर कृष्ण अब्दुल ने कौन सा हिस्सा चुनी है? एक मरियम ने हिस्सा चुना, उससे पहले किसने ये हिस्सा चुना? सदर कृष्ण अब्दुल ने ये हिस्सा चुना। कौन, कहां पर चुना? जब शाही खुराक उन्हें दी गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस खुराक को इस्तेमाल नहीं। खुदा ने उनके एतकाद को, भरोसे को जो उन्होंने अपने मुनज्जी यीशु मसीह पर किया था, नबुव्वत नजर पर जाहिर कर दिया और उसे दिखाई दिया आपकी गलती भट्टी में कि जो लोग खुदा की दावत को कबूल कर लेते हैं, खुदा उनके साथ होता है। खुदा खुद उनकी क्या करता है? फिर रहनुमाई करता है। बोलिए आमीन। जब आप खुदा की हजूरी में इस बात को समझ जाएंगे कि अगर मैं मेहनत उठा रहा हूँ, मैं बोझ से दबा हुआ हूँ, तो खुदा मेरे साथ है, वो मुझे कह रहा है। तो उनसे नहीं कह रहा जो मेहनत नहीं करते, जो बोझ से दबे हुए नहीं। इसलिए खुदा ने मत्ती की 5वें बात में ये बात कही कि मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो क्या पाएंगे? तो मैं ये बात इस तरह से समझता हूँ कि जो मेहनत करते हैं, जो बोझ उठाते हैं, खुदा के लिए काम करते हैं, खुदा के लिए, खुदा की शरीयत के लिए, खुदा की दावत के लिए अपने आप को पेश करते हैं और लोगों का बोझ उठा लेते हैं। खुदा उनसे कहता है कि मेरे पास आ जाओ, इधर उधर मत जाओ, मेरे पास आओ, ताकि मैं तुम्हारे बोझ को क्या कर दूं। ये आराम की दावत खुदा मुझे और आपको देता है, और इस दावत में आपकी सारी थकावट, बोझलपन जो है वो यीशु अपनी हमदर्दी के वसीले से दूर करना चाहता है। वो हमारा हमदर्द बनना चाहता है इस बात के वसीले से, इस दावत के वसीले से। क्या आज आप उसकी हमदर्दी को कबूल करते हैं ताकि वो आपके बोझ को जो है वो उठा ले? देखिए, खुदावंद मुझे और आपको ये समझाना चाहता है कि तुम इस बोझ की नौयत को अभी समझ नहीं पा रहे। ये बोझ तुम्हें मार देगा, ये बोझ तुम्हें मायूसियों में ले जाएगा। इस बोझ के तले कभी भी तुम कामयाबी
कि जिंदगी बसर नहीं कर सकते। तो बोझ की नौयत की खुदावंद में समझा रहा है कि आराम पाना है तो मेरे पास आ जाओ। दुनिया में कोई नहीं है जो इस बोझ को उतार कर तुम्हें क्या दे दे, आराम दे दे। यीशु के पास आना ही हमारी तलाश को खत्म कर देता है। हम बोझ उठाते हैं, मसीह मुसाफिर भूख का एक बड़ी पुरानी, अगर किसी ने पढ़ी हो तो वो एक बोझ उठा के चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। फिर जब शरीर के तले पहुंच जाता है तो दोनों अपने हाथ सीधे करता है तो उसका बोझ जो पीछे फंसा होता है वो गिर जाता है और वो आजाद हो जाता है। आज अगर मैं और आप भी उस शरीर के साए तले आ जाते हैं तो अपने बोझ से क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। खुदा हमें ये सिखाना चाहता है, खुदा हमें ये बताना चाहता है कि तुम्हारी तलाश अगर मेरे तक है तो फिर तो बोझ से आजाद हो, लेकिन अगर मुझ तक नहीं आओगे तो बोझ के तले दबे ही रहोगे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी तलाश खत्म हो जाए? यीशु हमें सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है यीशु? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। क्या तजर्बा देना चाहता है? जब हम इमदादी कुतुब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है तफसीर लिखते हुए कि यीशु मसीह चूंकि तो बड़ाई का बेटा था, जिस्मानी तौर पर वो एक अच्छा बड़ाई था, और वो जो जुए बनाता था, पंजाबी जिसे हम कहते हैं, वो बनाता था तो वो सबसे आला तरीन बनाता था, मुलायम बनाता था, जिससे बैल की जो गर्दन है वो जख्मी नहीं होती, वो मुलायम बना के देता था। अगर इसके इलाहियाती पहलू को देखें तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो मैं बना रहा हूँ, मैं उस तजर्बे में से गुजर कर ये कह रहा हूँ कि मेरा जुआ क्या है, वो सिखाना चाहता है मुझे और आपको कि मैंने इस जुए की सारी शक्ति को, इस जुए के सारे खुरदरेपन को मैंने क्या कर दिया है। अब जो वहां पर सिस्टम के लोग थे, वो जो जुए डालते थे वो अपनी जिंदगी के तजर्बे में नहीं लाते, वो जुए खुरदरे होते थे, जो लोगों पर डाल दिए जाते थे और लोग चीखते चिल्लाते रहते। उस दौर में भी सिस्टम जो है उसने तंग किया, उस दौर में भी सिस्टम तंग किया, लेकिन खुदा का सिस्टम जिसने अपना लिया अपनी जिंदगी का वारिस नहीं ठहरेगा। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह की इस दावत के वसीले से मुझे और आपको ये सिखाते हैं, अगर आपने कबूल कर लिया तो जो तजर्बा मुझे हुआ है इस जुए के वसीले से वो तुम्हें भी होगा। फिर ये जो जुआ है ये खुदा की हज़ूरी में सीखने वाला जुआ है। खुदा यीशु मसीह की आप जिंदगी पर गौर करें तो हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे, अपनी खुदी का। तो खुदा यीशु मसीह ने फिलिपियों का खत पढ़ के दूसरा बाब पर क्या लिखा है कि अगर ये सब कुछ उसके इख्तियार में था, उसने सब कुछ क्या कर दिया, छोड़ दिया और इंसान बनाया, और यहाँ तक बस अपने आप को किया कि सलीबी मौत में उसने खुद ही को अपने सामने नहीं रखा। तो अगर आप और मैं उसके पीछे आना चाहते हैं तो फिर उसके नक्शे कदम पर चलेंगे। जैसे पौलुस कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा, तो वो मुझे और आपको शागिर्दी का जुआ देना चाहता है कि आप उसके शागिर्द बनेंगे। ये कितना बड़ा इसका इनाम होगा, ये कितनी बड़ी बरकत होगी कि मैं और आप यीशु को क्या बन जाए, शागिर्द बन जाए। शागिर्दियत की बरकत है इस जुए में, जो जुआ खुदा बनी यीशु मसीह आपको देता है। इस जुए में जो बात मेरी समझ में आती है, जो मैंने सीखी है, जब वो ये कहता है कि मेरा जुआ उठा लो, मेरा जुआ क्या है, मुलायम है, तो वो देने की पेशकश कर रहा है और देने की पेशकश में मौजूद है, वो मौजूद है। तो इस जुए में अगर
पहलू मौजूद है, तो फिर माफी का पहलू भी इस जुड़े में क्या है, मौजूद है। आमतौर पर लोग कहते हैं, मैंने एक बात सीखी पिछले दिनों, लोग ये कहते हैं कि मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत भी। जावेद साहब का गलत कह रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। मैंने ये सीखा इस कलाम के वसीले से कि माफी होगी तो मुफाहमत होगी, माफी नहीं है तो मुफाहमत भी नहीं है। लोग मज़ाहमत करके, मुखालिफत करके फिर समझौते की तरफ आते हैं, लेकिन खुदा माफ करके मुझे और आपको अपना लेता है और ये फरमाता है कि मेरा जुबा ले लो, क्योंकि मेरे जुबे में तुम्हारी माफी और निजात का पैगाम है। हालेलुया। खुदावंद मुझे और आपको अपनी मोहब्बत में एक और चीज देना चाहता है। मेरा जुबा उठा लो, मेरा जुबा फैल लो, क्योंकि मैं दिल का क्या हूँ, फरोख्त हूँ। तुम्हारी जाने क्या पाएंगी, क्या पाएंगी? कुरान सुरसी की इस बात को ज़रूर 23 के साथ जोड़े हुए क्या कहते हैं, खुदावंद मेरा मुझे कोई कमी ना हो। जब हम खुदावंद सुरसी का जुआ ले लेते हैं तो फिर वो हमारा अच्छा निगहबान और गवाह बन जाता है, फिर वो हमारे आगे आगे चलता है। यीशु मेरे आगे आगे चल मेरे रहबर रामा दी राखी दे वादे दी। जो ये गाते हैं उनके ईमान को खुदा और क्या कर देता है, मजबूत कर देता है, क्योंकि जो उसके जुए में आ जाते हैं वो उनकी देखभाल करता है। क्योंकि जुआ किसका है, यीशु का है, वो मालिक है। और जब हम मालिक के पास आ जाते हैं तो फिर वो हमें कभी की तरह नहीं छोड़ता। आज के इस हिस्से को कि तुम्हारी जाने आराम पाएगी कि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ क्या है, हल्का है। आज अगर हम अपनी इस मसरूफ दुनिया में अपने आप को देखें तो हमारा इंसार किस पर है? खुदा ने इस दावत में कह दिया कि मुझ पर इंसार करो। अगर डिपेंड करना है तो फिर मुझ पर डिपेंड करो। मैं तुम्हारा परवरदिगार, मैं तुम्हारा संभालने वाला, मैं तुम्हारा मौक़िफ़ खड़ा, मैं तुम्हारी जान का लंगर, मैं तुम्हारे लिए मजबूत क्या हूँ, चट्टान। अगर हमने इन बातों पर अपना ध्यान लगा दिया और अपने आप को खुदा की हज़ूरी में उसके हवाले कर दिया और अपना भरोसा खुदावंद पर रख लिया और उसके इस तजर्बे में से हमने सीख लिया कि खुदावंद मुझे और आपको खुशी देना चाहता है, खुदा मुझे और आपको संभालना चाहता है, खुदा मुझे और आपको जो है वो बोझों से आज़ाद करना चाहता है, खुदा मेरी और आपकी तलाश को ख़त्म करना चाहता है। तो इस दावत को कबूल कीजिए। वो क्या गीत गाते हैं, ना फिर वाम जंगल की हड्डी, ये तो मुक्ति हासिल करनी। यीशु के पास आ जा, अगर मुक्ति हासिल करनी है तो यीशु के बगैर मुक्ति जो है नहीं है। तेरी तलाश यीशु पर खत्म होनी चाहिए। तेरी जिंदगी का तजर्बा यीशु के तजर्बे में शामिल हो जाना चाहिए, ताकि वो तेरी सोच को बदल दे और इस जुए की तब्दीली के वसीले से तुझे वो ताकत दे कि तू दूसरों के बोझ को उठाने के लायक बन जाए। अगर आज इस दावत को कबूल करते हैं तो आप दूसरों का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस तरह यीशु मसीह कहता है कि मुझे अपना बोझ क्या कर दो, दे दो। क्या आज आप चाहते हैं कि आप इस दावत के मुताबिक अपनी जिंदगी की बसर करें? आप अंबिया इकराम की तरह उसकी फर्मा बरदारी करना चाहते हैं? आप अपनी कौम के लिए हमदर्दी रखना चाहते हैं, दर्द रखना चाहते हैं, अपनी कौम के लिए काम करना चाहते हैं, उनकी जिंदगियों में तब्दीली लाना चाहते हैं? खुदा यीशु मसीह का जवाब है, उसकी दावत को कबूल करना। तो फिर खुदावंद आपको वो मंसूब है, वो प्यार देगा जिससे आप, आपका घराना और आपके लोग पटने की तरफ काम करने जाएंगे। खुदा बोले सकेंगे मुझे
آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ میرے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری زندگی بخش کلام کی اس دعوت کو جو آج بھی تم نے ہمارے لیے رکھی تاکہ ہم تجھ پر اپنا دھیان کریں، تجھے اپنا پروردگار کریں، کیونکہ تو ہی ہمارا سنبھالنے والا ہے، تو ہی یہوہ جلی ہے جو سب کچھ مہیا کرتا ہے، تو ہی سلامتی بخشنے والا ہے اور تو ہی ہماری زندگی کا محافظ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھ چلنے میں پسند ہے تاکہ ہمیں دوسرے کی نعمت وسیلہ بنے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔